हरियाणा बीजेपी ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ सांसद ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ। 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਨਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ। ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸੀਈਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਣੇ 9 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ। 30 ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। 20 ਤੋਂ 25 ਰਾਉਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ। ਮੁਰਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਜਾਮ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ। ਮਿਸ ਵਰਲਡ 2024 ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੂਲੀਆ ਮੋਰਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਵਾਰਡ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2019 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦਾਵਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ membership of BJP due to compelling political reason।
I extend gratitude to the party, National President Shri JP Nadda, Prime Minister Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah for giving me the opportunity to serve as a member of parliament from Hisar। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। मेरे सहयोगी अंकित इस वेले मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। अंकित का रुख करते हैं सीधा। अंकित, बड़ा झटका बीजेपी के लिए, हालांकि चर्चाएं तो यह भी चल रही थी कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों में से कुछ की टिकट काट सकती है, लेकिन उससे पहले ही सांसद महोदय खुद ही अपने आप से ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कैसे समझा जाए इस स्थिति को अंकित? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपने भी कहा कि बीजेपी टिकट काटने जा रही है कुछ नेताओं के, और ये अब कंफर्म भी हो गया था कि ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कट रही है। हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह को पार्टी दोबारा से उम्मीदवार बनाने के लिए राजी नहीं है। वहां से हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को वहां से बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का संशय, इस बात की भनक ब्रिजेंद्र सिंह को भी लग गई, वीरेंद्र सिंह को भी लग गई। तो इसलिए आज शाम को ये मीटिंग होनी है जिसमें उम्मीदवार तय होने हैं। हालांकि औपचारिक मोहर लगनी है, वैसे उम्मीदवारों के नाम तो पहले ही तय हो चुके हैं क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो भनक लगते ही, और दोनों ब्रिजेंद्र सिंह हो या वीरेंद्र सिंह हो, दोनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके आवास पर भी पहुंच गए। अभी कुछ ही पलों के अंदर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक रीजंस होते हैं, क्योंकि हर एक नेता चुनाव लड़ना चाहता है। अंकित, एक मिनट के लिए एक चीज समझना चाहेंगे। अभी तक हम ब्रिजेंद्र सिंह के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है? ऐसा वीरेंद्र सिंह ने लिखा नहीं है, लेकिन वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे पहुंचे हैं। तो दोनों अगर आवास पे पहुंचते हैं और वहां जाकर के अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि दोनों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या खाली ब्रिजेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह साथ गए हैं तो कहीं ना कहीं, और वीरेंद्र सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं, वो तो राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर चुके हैं। क्योंकि जब ब्रिजेंद्र सिंह को सांसद बनाया था तो उन्होंने अपने आप ही कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो तो पहले ही ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिजेंद्र सिंह के लिए ही महत्वपूर्ण है। और अगर बात आती है प्रेमलता की, जो कि उनकी माताजी है, ब्रिजेंद्र सिंह की माता, अभी उनका क्या स्टैंड रहेगा, क्या रुख रहेगा, क्या, क्योंकि वो पूर्व में बीजेपी की विधायक रही हैं। 2014 से 19 की बात करें तो वो उचाना जो विधानसभा है वहां से विधायक रही हैं। लेकिन अभी उचाना विधानसभा से जो कि प्रेजेंट में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो विधायक हैं। तो आपस में जो जननायक जनता पार्टी है और विजेंद्र सिंह परिवार है, दोनों की आपस में टसल चलता रहता है और दोनों की बयानबाजियां भी लगातार चलती रहती है। अभी थोड़े ही दिन पहले वीरेंद्र सिंह ने रैली की थी और रैली के अंदर बीजेपी को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो गठबंधन तोड़े दुष्यंत चौटाला से या फिर हम पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि गठबंधन नहीं तोड़ा गया, ना कोई एक्शन पार्टी की ओर से लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूरी मानी जा सकती है, क्योंकि अगर गठबंधन के अंदर सरकार फिर से चुनाव लड़ती है, अगर विधानसभा का भी चुनाव लड़ती है, तो स्वाभाविक है कि उचाना जो लोक विधानसभा सीट है वो दुष्यंत के पाले में जाएगी, जननायक जनता पार्टी के पाले में जाएगी। तो जो माताजी है ब्रिजेंद्र सिंह की, वीरेंद्र सिंह की पत्नी है प्रेमलता, उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर चुनाव हर एक आदमी लड़ना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहेगा तो ही राजनीति चल पाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उनकी पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिसमें 40 साल वीरेंद्र सिंह ने गुजारे हैं, तो उसका एक बार रुख कर रहे हैं वो। ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग चीज है अंकित। हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा सा और बड़ा कर देखते हैं। कांग्रेस से नेता बीजेपी में गए, कांग्रेस से बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में गए और कांग्रेस से आए हुए चेहरों को बीजेपी ने टिकट भी दे दी, वो एमपी भी बन गए। इस एक कदम से, ब्रिजेंद्र सिंह के इस एक फैसले से दो तीन चीजें जो सामने आती नजर आ रही हैं। एक तो यह कि अपने पुराने कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु, जिनका जाट वोट बैंक पर भी एक अच्छी खासी पकड़ है, उन्हें कहीं ना कहीं टिकट देकर, जो एक ये अंदरूनी स्तर पर ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी या कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एक गैप जो चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं अकोमोडेट करेगी बीजेपी। और दूसरा फिर कुलदीप बिश्नोई, हिसार से ही कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जाने का ऐलान करते हैं और उसके बाद टिकट मांगी जाती है, वो सब चीजें भी चल रही थी।
क्या उन्हें भी एक मैसेज हो गया कि अब कांग्रेस से आने वाले नेताओं को टिकट नहीं, अब हम अपने पुराने आदमी को ही टिकट देंगे? ऐसा भी हो रहा है अंकित? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह का मामला है, क्योंकि वो लगातार पार्टी पर दबाव भी बना रहे थे और पार्टी अब आज जिस स्थिति के अंदर है, किसी का भी दबाव झेल नहीं रही है, किसी का भी दबाव मान नहीं रही है। अभी जिस तरह से एक मैं और खबर दे देता हूँ आपको कि जननायक जनता पार्टी ने भी अभी बैठक बुलाई है, जो संसदीय उनका कोर ग्रुप है उसकी बैठक बुलाई है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई है और वो भी फैसला लेंगे कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को भी एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं देगी। 10 के 10 सीटों पर कमल का फूल जो है वही चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा भी होता है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ती है तो गठबंधन भी टूट जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कल ही दिग्विजय सिंह की बात करें जो कि नेता हैं और दुष्यंत चौटाला के भाई भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम 10 की 10 से भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं अगर गठबंधन में कोई फैसला नहीं होता है तो अभी देखना होगा कि किस तरह का फैसला, क्योंकि आज शाम को बैठक है और शाम को बैठक में उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के नामों पर मोहर लग जाएगी और उसकी घोषणा हो जाएगी। तो अभी गठबंधन पर भी संशय है, ऐसा नहीं है कि ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और वो अगर कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं तो गठबंधन अब पर सख्ती से वो मोहर लग गई है कि गठबंधन अब नहीं टूटेगा। तो गठबंधन भी टूट सकता है, क्योंकि अगर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ती है तो गठबंधन पर भी कहीं ना कहीं आंच आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे। सब तो ਵੱਡੀ खबर इस वेले हरियाणा की राजनीति के नाल जुड़ी 2-3 चीज़ा बड़ी क्लीयर हो रही ने। पहली गल, ब्रिजेंद्र सिंह ने पार्टी छड्डण का ऐलान कर दिता है। वीरेंद्र सिंह के बेटे चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह साबका IAS अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी छड्ड के सियासत दे विच आए और सियासत विच आउण तो बाद MP चुने गए। MP चुनण तो बाद एक टेन्योर पूरा हजे होने वाला है और उस तो पहला उन्होंने पार्टी छड्डण का ऐलान कर दिता है। एक चीज, दूजा है ब्रिजेंद्र सिंह पहुंचे ने मल्लिकार्जुन खड़गे देकर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे ने। तीजी गल सब तो अहम है कि JJP ते BJP का अलायंस शायद इकट्ठे चोण ना लड़े। जी हां, बीजेपी शायद ये बहुत मुमकिन है, अंदरूनी सूत्रों के हवाले तो जी जानकारी मिल रही है कि 10 दियां 10 सीटां ते बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे और JJP भी ये कह चुकी है कि असं 10 सीटां ते चोण लड़न दे लई तैयार हां। सो हरियाणा की राजनीति दे विच बहुत बड़ा बदलाव आज, हालांकि छुट्टी का दिन है पर क्योंकि लोकसभा चोणां दा वरा है, पर इस वरे की शुरुआत जिहड़ी हैगी है बहुत हंगामेदार तरीके नाल होण जा रही है हरियाणा दे विच। ट्रैक ते किसान ने, मुसाफिर परेशान ने, क्योंकि पूरे देश के विच किसानां ने रेल रोको अंदोलन का ऐलान कर दिता है। पंजाब भर दे विच रेलवे ट्रैक ते किसान बैठे हुए, कई थावां ते किसानां ने रेलां रोक दित्तियां ने। तकरीबन 52 थावां ते रेलां दा चक्का जाम कर दिता है। शामी 4 बजे तक रेलां दा चक्का जाम करनगे किसान। सफर ते निकले हुए लोकां नूं खासी दिक्कतां दरपेश आ रही ने। MSP कानून की मंग नूं लैके अंदोलन कर रहे किसान पिछले 26 दिनों तो शंभू ते खनौरी बॉर्डर से धरना चल रहा है कि अज का ऐलान सीगा रेलां रोकण दा। हालांकि ये वक्त तो है जदों MSP नूं लैके कोई कदम चुक्या जा सकता है या नहीं, इस नूं लैके कई सारे सवाल ने। चोण वरा है और अगले हफ्ते दे विच, आने वाले हफ्ते दे विच किसी भी वेले कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, चोण जाबता लग सकता है चोणों के ऐलान के नाल ही। पर इस सब दे विचाले किसान जिहड़े जथेबंदियां ने उन्होंने रेल रोको अंदोलन का ऐलान किया और उसके नाल कितना फर्क ट्रैक से पै रहा, कितनी ट्रेनां डाइवर्ट की गई ने, मुसाफिर किन्ने खज्जल खुआर हो रहे हैं, यह समझने की कोशिश करांगे। मेरे सहयोगी रोहित गौर मेरे नाल इस वेले लुधियाना तो जुड़ रहे हैं। रोहित, किसान ट्रैक से आके बह गए ने, पर जिहड़े लोग अपने घरों निकले हुए सीगे गड्डियां में सवार होने दे लई या गड्डियां में ऑलरेडी सवार ने, जिहड़ी गड्डियां आगे जा नहीं पा रही, की स्थिति हैगी है, मुसाफिर किन्ने परेशान? रोहित
ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ। ਮਾਲਵਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਲਵਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ है और ट्रेन ਜਿਹੜੀ है वो ਇੱਥੇ रुक चुकी है। लोगों से गल करने सर कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत आ रही है? जी हम आए हैं इधर से अपना दिल्ली से जी। और अभी ये जो है ना बंद है तो कह रहे हैं कि ट्रेन 4 बजे जाएगी। हम तो बड़े मुसीबत में फंस गए, ये अगर ऐसे ही रहा तो बताइए हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। आपको मालूम था, बताया गया था? जी नहीं, हमें नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो ट्रेन ही क्यों चलती, हम तो इसलिए बैठे थे कि हमें मालूम नहीं था। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल आप देख सकते हैं, तो देख सकते हो कि सीधे तौर ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। लोग इस सफर कर रहे ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता ਸੀਗਾ कि किस तरीके ना। कहाँ से आए हैं भाई, आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ से आए हैं भाई, आप कहाँ जा रहे थे? सर लुधियाना जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? लुधियाना। ठीक है, कितनी दिक्कत, क्या हुआ, ट्रेन रुक गई? जी ट्रेन रुकी हुई है। तो अभी कैसे जा पाएंगे? देखिए सर क्या होता है। वैसे 3 घंटे लेट चल सर कहाँ से आए, कहाँ जाना था आपको? ग्वालियर से आए, वैष्णो देवी जा रहे थे दर्शन के लिए जी। लेकिन अभी रोक दिया गया है रास्ता। अब कितनी देर में खुलेगा पता नहीं, कब तक खुलेगा ये। जी। तो पूरा वैसे ही गड़बड़ा गया पूरा सिस्टम, पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। पूरा गड़बड़ा गया है। पहले से लेट है हम, पहले से ट्रेन लेट चल रही है जी। और अब ये आंदोलन की वजह से और लेट हो गया है। सर कित्थों आए हो सर, की दिक्कत आ रही है? फरीदाबाद तो आएंगे। कित्थे जाना सीगा? मैं जाना जलंधर। अच्छा, हाँ ते जी। हुण किद्दां करोगे? बस ही जावांगे, धक्के खावांगे, होर करेंगे जी इन्हां दी बदौलत। परेशानी हो रही बहुत ज्यादा। आप देखो ना नियाणे किद्दां रो रहे, ट्रेन सारे जाने देखो की हो रहा, परेशानी कितनी परेशानी हो रही लोगों ने, किसी ने थोड़ी समझ आ। बिल्कुल लोग सवेरे रोकते चीज ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਕੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੋਕੋ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ट्रेन रोक दो। जी। सारी पब्लिक परेशान है इनके चक्कर में। हम अम्बाला कैंट से आए हैं जी, अच्छा, अब जाना है लुधियाने से। अब बताओ कैसे ये कोई साधन मिलेगा जब भी जाएंगे, बताओ क्या करें हम। सर या हम आए कहाँ से आए आप? इन्हीं के साथ अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट आप कहाँ से आए? भोपाल से आए सर। वो कहाँ जाना था? ये क्या बोलते हैं, फिरोजपुर। फिरोजपुर जाना था। हाँ, तो कैसे जा पाएंगे आप? अब रोक दी उन्हें ट्रेन, अब कैसे जा पाएंगे, बेटे यहाँ क्या करें। ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਪਾਰਟੀ सब है सब ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਆ ਰੱਖੀ हाँ, ਸਭ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਗਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ कि दिखान तस्वीरें। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत है बाबू जी। कहाँ से आए हैं? हम तो आए मुरैना से चल के आ रहे। अच्छा, कहाँ जाना था? हमने जाना मकेरिया। जी। तो आप कैसे जा पाएंगे? कुछ अब दिक्कत आएगी स्टेशन पे, क्या करेंगे रात में। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बच्चा उठा रखा है आपने, बड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको। सरन से ही आए हैं सर, जम्मू जाना। जम्मू। जम्मू जाना था? हाँ। तो कुछ पता था आपको कि ट्रेन रुकेगी? नहीं पता था। छोटे छोटे बच्चे आप कैसे करेंगे? आप क्या करें, देखते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ट्रेनें रोक दी गई हैं। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था आपको? पानीपत से आए। पानीपत से आए। कहाँ जाना था? दीनानगर जाना था। और कहाँ रुक गई? ट्रेन रुक गई है? हाँ, ट्रेन रुकी है। तो क्या दिक्कत आएगी आपको? दिक्कत आई गई, फिर करें क्या। कितने बजे का समय था ट्रेन का पहुँचने का? लगता है हाँ, बोलते 12 में पहुंचेगी। मेरे नाल होर भी है बजुर्ग थे। सर की कहना चाहो, कित्थों आए हो? असी जी दिल्ली तो आया, बड़ा बुरा हाल है।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਘਰ ਜੰਮੂ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ 2 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ਨਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗगन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। मैम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था आपको? हम रुद्र वहाँ से आए हैं, मथुरा से। लुधियाना जंक्शन, लुधियाना जाना था। अच्छा, अब ट्रेन यहाँ रुक गई है, सुबह के चले हुए हैं, अब खेती से बैठे बैठे हैं ट्रेन के अंदर। बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है, सुबह से सारी परेशान हो रही है। बिल्कुल, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं परेशान हो रही है। मैम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था आपको? दिल्ली जाना, मेरे फादर की डेथ हो गई है, गाड़ी रुकती रुकती आ रही, इतने परेशान हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसान लोग ये अपने भले में सोच रहे हैं, अगर ये किसान होते तो बहुत कुछ सोचते हैं। ये किसान नहीं है, ये किसान लोग नहीं है, ये दूसरों का बुरा सोच रहे हैं या कुछ नहीं है। इनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि किसी के घर में कैसी मौत है, किसी के कुछ है, ये लोग अपना सोच रहे हैं। अच्छे लोग होते ना किसान, तो किसान जो कहते ना अन्नदाता, ये अन्नदाता नहीं है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट की नीति को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो परेशान हो रहे हैं। हम सुबह 3 बजे से निकले हुए हैं घर से 3 बजे से। डेथ हो रखी है किसी की? हाँ जी।